चलेगा पोस्ट Post बना बना के शेयर करता हूँ। शेयर कर। मनीष आप कुछ बता रहे थे? Tushar, I was saying this thing that like I assume the same thing would be happening at Android as well, and like you guys are better judges. But when you just have one component, having these three variables is generally enough, right? So it actually gives you the functions like set top margin, bottom margin, left margin, right margin, and horizontal margin, vertical margin. So like multiple ways to set margin, multiple ways to set border and padding. So when you think of a single component, box object is all you need. But obviously, I see no app decent size just being able to use box model. Then this model comes in which what really matters is that even in the definition it said how the siblings will be spaced with respect to each other, not with respect to the parents, not with respect to themselves, but with each other, right? So all the actions or the features that will be supported will be with respect to the siblings. So as align items, you can see like aligned to the start of parent, aligned to the center of parent, but it's happening for all the siblings, right? And then uh, there was a concept of flex direction, like which direction they are basically spreading. Is it by default, which is columnar, or you can set it by row? Then it would look like the right one in the diagram. So again, a key thing to note is, are you spacing with respect to the siblings, or are you spacing with respect to the same component itself? Or the third case, which Hitanshu will go forward, setting a component with respect to their parent. That would be the third one. So again, as rightfully mentioned and will be mentioned later as well, like you can achieve the same things using either of the three, right? Setting a component margin from the start, you can use the box model. You can also use this align model and use align center, so that with respect to the parent, you get at the center. And then you can also use a third one. But that being said, these are three different ways of thinking the problem, right? But one thing is definitely true that you can't really live without the second or the third one, because otherwise it's hard to solve with respect to the box model. Like otherwise you have to do this calculation. Let's say you have sibling one, then you want 100 space, then you want sibling two. So you actually have to say margin 0 for the first component and margin 100 for the second component. You have to do that calculation mentally, while these models basically saves you that calculation, the sibling model and the parent child model. So that's it. Otherwise, like you can literally set those values as Tushar you initially asked in the question and use the box model itself. Right, right, Hitanshu? इसमें हाँ सही है। इसमें मतलब एक और चीज़ ऐड करनी थी कि सो जैसे अब हमें सेंटर किया, सो अगर हमें बॉक्स करना है तो कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी लेफ्ट और राइट की। सो यूजिंग दिस फ्लेक्स मॉडल, so also helps in like different screen sizes and making it responsive. अब बड़े स्क्रीन साइज में सेंटर अलग अलग होगा, छोटे फोन में अलग होगा, सो उसमें ये ऐसे यूजफुल करते हैं मेरे लिए। कूल। हाँ, सो दिस वाज अबाउट फ्लेक्स डायरेक्शन और उस पे अलाइन आइटम्स देख कैसे like we can use this the like combination of them to achieve our desired layout. उसके बाद है जस्टिफाई कंटेंट। तो जस्टिफाइड कंटेंट इसके लिए ये क्या करते हैं, मतलब मुझे मोस्टली जस्टिफाइड कंटेंट और लाइन आइटम्स सिमिलर लगे हैं। इसमें डिफरेंशिएशन आई डोंट नो कि क्या है, बट इट हैज़ मोर लाइक मोर प्रॉपर्टीज की फ्लेक्स स्टार्ट में ऐसे मतलब बिल्कुल ऊपर लग जाएंगे, सेंटर में सारे मतलब पूरा ग्रुप सेंटर हो जाएगा, और स्पेस बिटवीन और स्पेस अराउंड। तो स्पेस बिटवीन में क्या है कि अगर हमारे पास n एलिमेंट्स है तो n-1 जो उसके अंदर अंदर में चेंजेस हो जाएंगे। स्पेस अराउंड में सारे एलिमेंट्स के बीच में होंगे, ऊपर नीचे भी सेम So, स्पेस आदमी Hitanshu, लगेंगे। this was the difference. So, while flex start, center and end was already supported line items, but space between and space around were the two extra functionalities which justify content. And these are just keys which can set on the sibling components. You can just say sibling component के अंदर justify content equal to space in between, and it will automatically do this thing for you, as you can see in the center bottom view.
So the last two are add-ons. Otherwise, you can use the other three, align items to get the first three views. Right, Hitanshu? Hmm. I think Just for the constant elements, na, not for the recyclable kind of thing, right, Ratanshu? These are the constant child 1, child 2, child 3 are the separate components we are creating, right? these are sibling components, yeah? So they are wrapped in the single parent view. Like you actually defined a parent, and in that parent wrapper, you define three sibling components. So I really don't know. There are three different components. I'm just asking. Yeah, Child 1 we have to create 1 and child 2. It's not the scrollable kind of thing, right? उनका क्वेश्चन है कि जैसे हम फ्लैट आइटम फ्लैट लिस्ट यूज़ करते हैं, अगर उसमें ये कंपोनेंट्स चाइल्ड कंपोनेंट्स हो तो उसमें हम ये प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं. Yeah, I was asking that if that will be happening, then how will we be deciding that what the distance between the gaps between the two items? Because justify content space around is just giving a space around space around kind of just vague thing, not the exact pixels, how much pixel difference we need between the components, right? So हाँ मतलब वो ट्राई नहीं किया, बट आई गेस ये तो बेसिकली पेरेंट जब फिक्स होता है, सो आई मीन जब पेरेंट की हाइट ऑफ इट फिक्स है, सो देन लाइक द स्पेस अराउंड शुड वर्क, क्योंकि वो तभी कैलकुलेट कर पाएगा. लाइक इफ द लाइक पूरा व्यू इज स्क्रॉलेबल है, सो आई डोंट थिंक वो मतलब ये कैलकुलेट कर पाएगा कि कैसे कितना स्पेसिंग देनी है बीच में. सो हाँ, तो जैसे अब फ्लेक्स जैसे ऊपर था, फ्लेक्स डायरेक्शन के अंदर अलाइन आइटम्स चेंज हो सकते हैं, तो सिमिलरली फ्लेक्स डायरेक्शन में जस्टिफाइड कंटेंट भी डिफरेंट बिहेव करता है अगर हमें उसको कॉलम दिया या रो दिया. सो ये सारी चीज़ें अभी तो हमें वर्टिकल दिखने को मिल रही है, दिस कैन आल्सो बी अप्लाइड हॉरिजॉन्टली, जो स्पेस बिटवीन स्पेस अराउंड, ये सारी चीज़ें, राइट. सो अभी जो भी हमने ऊपर बात करी, सो दिस वाज अबाउट कि ये प्रॉपर्टीज हम पेरेंट को देते हैं और पेरेंट को ये प्रॉपर्टीज देकर चाइल्ड उसके डिफरेंटली बिहेव करते हैं, और चाइल्ड मतलब उसके सिबलिंग्स के से. अब पेरेंट को देकर हम चाइल्ड में भी प्रॉपर्टीज दे सकते हैं, और बेसिकली चाइल्ड में इंडिविजुअल भी दे सकते हैं, और अगर हमने पेरेंट को कुछ प्रॉपर्टी दी और चाइल्ड को कुछ प्रॉपर्टी दी, तो सो चाइल्ड कैन बेसिकली ओवरराइड दोज प्रॉपर्टीज और वो अपने हिसाब से बिहेव कर सकता है. सो वो दो प्रॉपर्टीज हैं, फ्लेक्स और असाइन सेल्फ, अलाइन सेल्फ. सो फ्लेक्स बेसिकली काफ़ी इंटरेस्टिंग है. तो फ्लेक्स में क्या होता है कि हम बेसिकली एक वेटेज दे देते हैं हर एक व्यू को, कि बेसिकली कितना तुम्हें वेट लेना है. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये चीज़ है, तो चाइल्ड 1, चाइल्ड 3, चाइल्ड 2, हमने इसको दे दिया फ्लेक्स 1, तो यानी चाइल्ड 1 और चाइल्ड 3 जितना स्पेस उनको चाहिए था वो ले लेंगे, बाकी जितना भी स्पेस बचा वो पूरा चाइल्ड 2 को मिल जाएगा, क्योंकि उसने फ्लेक्स 1 किया कि मुझे बिल्कुल सबसे बड़ा स्पेस चाहिए. यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल में चाइल्ड 2 को और चाइल्ड 3 को फ्लेक्स 1 मिला हुआ है, तो इसका मतलब है कि चाइल्ड 1 को जितना वर्टिकल स्पेस था उसने तो ले लिया, अब बाकी जो भी स्पेस बचा, अब क्योंकि दो चाइल्ड को फ्लेक्स 1 1 मिला हुआ है, तो जिसका सम 2 हो जाता है, सो वो बाकी का स्पेस 50-50 डिवाइड हो जाएगा, और 50% चाइल्ड 2 को मिल जाएगा, 50% चाइल्ड 3 को मिल जाएगा, एंड 50% ऑफ दिस एम्प्टी स्पेस, नॉट द होल पेरेंट. सो दिस फ्लेक्स वर्क्स मतलब ऐसे काम करता है. एंड सो यहाँ नोट भी डाला कि अगर मतलब एंड्रॉइड से है तो दिस इज लाइक एंड्रॉइड में भी एक लेआउट वेट करके प्रॉपर्टी होती है जो कि सिमिलरली ऐसे काम करती है. सो वी कैन लीनियर लेआउट में लेआउट वेट दे देते हैं और हम उस हिसाब से काम करते हैं, तो बिल्कुल सेम है, मतलब बस नाम चेंज है, बाकी ऐसे भी कर रहा है. One of the things which I remember from Angular was that you have 20, when you use div, you basically have 20 spaces. So you basically tell them that 3 spaces needed for this component, 3 is needed for this. But here what they're saying is whichever component you give the value of flex, it is used as a weight. So for example, if in the center example, if flex value was given as 1 to child 2 and flex value equal to 2 was given to child 3, what it will do is child 1 normally render होगा, then because 2 has weight 1 and 3 has weight 2, तो 2 को 1/3 स्पेस मिलेगा बचा हुआ और थर्ड वाले को 2/3. तो इट डज दैट कैलकुलेशन ऑन इट्स ओन कि आप मुझे प्रोपोर्शनल वेट्स बता दो, आई विल जस्ट कैलकुलेट एंड जितना भी बचा हुआ स्पेस होगा उसको डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि इस एग्जांपल में 1 है, टू माइट फील के सब बराबर आ रहा है, बट अगर आप 1 5 दे दोगे तो चाइल्ड 3 का 5x होगा 2 वाले से.
Right. Yeah, just That's the ratio kind of thing, right? basically it's just a ratio, yeah, for the remaining space in the parent. और जिसको flex नहीं दोगे वो normally render होगा, as Hitanshu mentioned. So this was about flex, और इसके बाद align self है. तो बेसिकली हमने पेरेंट को जो भी दिया हो, बेसिकली यहाँ पर स्ट्रेच जो डिफ़ॉल्ट है वो दिया हुआ है, लेकिन हमने चाइल्ड 2 को बोला कि यू आर फ्लेक्स एंड यू आर सेंटर, यू आर स्टार्ट, तो वो इस हिसाब से अपना काम करेगा. तो सिर्फ एक चाइल्ड पे ये प्रॉपर्टी लगेगी जो कि डिफरेंटली बिहेव करेगा अपने सिबलिंग्स के हिसाब से, मतलब राइट. सो हाँ, तो दिस वाज अबाउट कि बेसिकली फ्लेक्स मॉडल के हिसाब से कैसे काम कर रहा है. उसके बाद इंस्ट्रक्टर ने बताया था कि दे ऑल्सो लाइक एब्सोल्यूट, मतलब पोजीशन मॉडल में हम एब्सोल्यूट दे सकते हैं. तो अभी रिलेटिव का क्या मतलब है कि जो भी हम चाइल्ड डाल रहे थे, दे आर ओबेइंग सम लॉज कि जो कि उसके सिबलिंग्स के हिसाब से है. तो जैसे मैंने कुछ ऐड किया, सो ही इज़ ओबेइंग कि हाँ मेरे से पहले सिबलिंग डाला है, सो मैं उसके बाद डल जाऊँगा. और अगर उसने अलाइनमेंट चेंज करी है तो उसको पता है कि हाँ अलाइनमेंट मेरी तो यहाँ पर क्या था, हाँ मेरी फ्लेक्स डायरेक्शन रो है, तो मैं उसके ऐसा मतलब इनलाइन डलूँगा, ना कि नीचे डलूँगा. सो दिस वाज, मतलब वो रिलेटिव में उसको पता था, लेकिन एब्सोल्यूट में नहीं पता था. तो एब्सोल्यूट में वो बिल्कुल 0,0 पिक्सल पे उसको फेंक देता है. तो हमने चाइल्ड 2 को एब्सोल्यूट दिया तो बिल्कुल ऊपर जाके चिपक गया, और इस पर कुछ भी प्रॉपर्टीज़ नहीं है कि स्ट्रेच भी नहीं है, बस जितना स्पेस इसको चाहिए था उतना इसने ले लिया. और इसमें फिर खुद प्रॉपर्टीज़ डालेंगे. सो Hitanshu, इसमें क्वेश्चन था एक्चुअली, चारों में से कोई भी आंसर कर सकता है. ऐसे यूज केस कभी आता है, लाइक डू वी रियली, लाइक कैन यू एक्चुअली शेयर एन एग्जांपल जहाँ पे हम एब्सोल्यूट टाइप चीज करना चाहें कि मतलब ना, आई कैन ऑब्वियसली थिंक ऑफ सम ऑफ देम, बट अ गुड एग्जांपल व्हिच यू वुड से कि हाँ यार देखो तो स्लैम डंक है, गुड A एग्जांपल lot ऐसा of test cases. जिसमें Lot. एब्सोल्यूट बिहेवियर आप चाहो. जैसे मेरे को एक एग्जांपल लगता है, जैसे फेसबुक के टैब्स होते हैं, लेफ्ट में फेसबुक लिखा आता है, मे बी दैट्स वन एग्जांपल, बट जनरली बहुत सारे होते हैं ऐसे एग्जांपल. एक So if you एग्जांपल जैसे want मैं to सोच सकता हूँ. override some text on a picture kind of thing, so if you align two things, then they will go one below another, right? But if you want upon a picture kind of thing, so you have to just put the text on the picture. You just give child 1 the picture and child 2 the text, and just align accordingly where you get. But then I can do one more thing, right? I can make a single parent component जिसके अंदर image और text दोनों है. Like इसमें अभी assumption है कि दोनों different components हैं, right? Why should I not make a single component जिसमें image और text दोनों है and उनकी alignment within a component I set? इसमें again I'm differentiating in terms of इसमें sibling components है ये 3, और मैं कह रहा हूँ I'll make one component जिसमें image और text दो खुद एक दूसरे में sibling components होंगे, but वो पूरा एक component है. तो मैं child 1 child 2 नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा child x, और उसके अंदर डिफाइन करूंगा 2 is this and rest is 1 वाला पार्ट. तो with don't do the other one. There's an example in our app also, in the BPR portion also, that you have cancel button, reschedule button, and one more button at the top, right? Yeah. But behind we have a recycler view, and recycler view is recycling. You cannot attach that particular portion with a single component over a image or something, right? So there is a component above it which you have to draw, and there is a recycler view which is going behind it. So we don't want to just combine, we just need separate components for them. And yeah. But that can be done, right? Wherever possible. Cool. Move forward. So logic is all upon us. अगर हम चाहते हैं कि दोनों same components में रहे, तो we can do that also. Because it almost felt superficial, this example for me, कि मैं दो components क्यों बनाऊंगा अगर इतने related है तो initially. If they are related, yeah, we have to decide that if they are related, then we have to make a single component. सौरभ कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं एक्चुअली सोच रहा था आपको तो मैं भी अभी करेंटली जिस व्यू पे काम कर रहा था उसमें मुझे कुछ ऐसे ही बनाना था कि एक बैकग्राउंड इमेज है कुछ, उसके ऊपर प्रोवाइडर की इमेज है एंड देन कुछ नेम्स है. तो अंकित से भी मैंने डिस्कस किया था, तो उन्होंने भी यही सजेस्ट किया था कि ये सारे एक ही कंपोनेंट में थे. बेसिकली वी मेड अ सिंगल हेडर कंपोनेंट, इट वाज सपोज्ड टू बी अ हेडर. तो वी सजेस्टेड कि इमेज को एब्सोल्यूट करके एंड देन यू प्लेस योर ओन कंपोनेंट. सो दैट इज
another use case I could think of कि image को हमें पीछे ही रखना है, उसके आगे ये दो को स्टाइल करना है, not relative to that, but image should be standalone जहाँ वो है, और these should be relative to the parent. That Makes is sense. Good. Makes sense. Okay, so this was about relative absolute. तो उसके बाद इंस्ट्रक्टर ने ये दो प्रॉपर्टीज बताई थी कि टॉप और बॉटम. तो ये बेसिकली यहाँ पर पेरेंट है चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड 3, तो हमें चाइल्ड 2 पे टॉप 10 दे दिया. सो उसके ऊपर ये चाइल्ड 2 के ऊपर 10 की स्पेसिंग आ जाएगी. बट ये बेसिकली मार्जिन और पैडिंग से डिफरेंट है. सो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है कि चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड 3 तो एज इट इज़ जैसे होते हैं, अगर हम टॉप नहीं देते तो एज इट इज़ आते हैं. तो बेसिकली चाइल्ड 2 थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो गया है. अब यहाँ पे देखेंगे तो अब जब हम टॉप डालेंगे तो चाइल्ड 3 का मतलब 10 स्पेसिंग तो आ ही जाएगी 2 के ऊपर, लेकिन चाइल्ड 3 का 10 स्पेसिंग छुप भी जाएगा. तो इसमें ऐसा नहीं है कि अब चाइल्ड 2 के हिसाब से चाइल्ड 3 पे शिफ्ट हो रहा है, उसके सारे नीचे शिफ्ट हो रहे हैं, वो वही रहेंगे, बस चाइल्ड शिफ्ट हो जाएगा. सो टॉप बॉटम ये सारे पेरेंट्स और सिबलिंग के हिसाब से शिफ्ट हो रहे हैं. दे ऊपर वाला फंक्शन पे ये भी दे डोंट रियली केयर वो किसको शैडो कर रहे हैं या किसके ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं. बोथ द पोजीशन फंक्शन. इसमें मैं एक्चुअली वो सोच रहा था कि अगर एक्चुअली मेरा एक डाउट क्लियर हो गया इससे, प्रांशु ने एग्जांपल दिया, तो मैं आई वाज थिंकिंग मार्जिन टॉप एंड टॉप माइट बी सेम, बट एक्चुअली डिफरेंट है. अगर हम मार्जिन टॉप करते तो क्लास 3 नीचे शिफ्ट हो जाता, बट टॉप किया तो उसने क्लास 3 का भी स्पेस लिया. और नहीं, और मार्जिन टॉप करते तो तीनों सिबलिंग्स पे शिफ्ट होता क्योंकि वो पेरेंट लेवल पे शायद तुम लगता है. अच्छा यू आर सेइंग चाइल्ड 2 पे क्या? हाँ, और हाँ तो इसने ओवरराइड कर दिया. यस यस, ऐसे डिफरेंट है. सही है. सो टॉप बॉटम है तो उसके साथ साथ इनमें लेफ्ट राइट भी है, और लेफ्ट राइट में है कि बेसिकली ये स्क्रीन से बाहर चला जाता है तो ये हमेशा इतना पोर्शन दिखेगा. तो ऐसा something that already happens when we introduce bug in the app, so I'm not sure when we'll use it. Sure. ऐसा कर लेते हैं, काउंट निकाल लेते हैं कि कितनी बार ऐप में फिक्सेस गए और कितनी बार बैकएंड में फिक्सेस गए हैं, फिर हम डिबेट करते हैं. ये भी काउंट निकालते हैं, क्लाइंट को कितने यूजर को सर्व करना होता है, बैकएंड को कितने यूजर को सर्व करना होता है. तो Let's सेम do that. बग की बात कर रहे हैं ना. We can have a relative count. एक मिनट, तुम्हारे एक्स्ट्रा यूजर कैसे आ रहे हैं? कॉल ज्यादा आ रही हैं, ऐसे बोलो. यूजर तो टेक्निकली उतने ही हैं, कॉल्स बोल लो. साइमल्टेनियस लोड, एक क्लाइंट एक ही होता है और एक सर्वर को मल्टीपल क्लाइंट सपोर्ट करते हैं. हाँ, क्योंकि एनवायरनमेंट अलग अलग होता है. तुम्हारे पास तुम्हारी औकात कितनी ज्यादा होती है, हाँ, कुछ भी लगा लो मशीन. अनुपम ये बोलने लग जाएंगे अब तुम अब डिवाइस की रैम ले लो, सर्वर की रैम ले लो. हमको एक्चुअली लिखना पड़ता है. तुम लोग रिवर्ट कर सकते हो, ये सब आ जाएगा. तुम लोग रिवर्ट कर सकते हो, हम लोग रिवर्ट नहीं. कर सकते हैं थोड़ा एडवांस जाके. अरे चले यार, ऐसा कुछ नहीं है, हैप्पी बैंटर होने चाहिए. और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आई वाज सो टायर्ड, मैं बीच में बेहोश हो गया था. मेरे बगल में नहीं अभी स्टॉक के बीच में. ओह सीरियसली? आई पास आउट, फिर मैंने उठा, सिस्टर ने उठा के अबे क्लास चल रही है. मैंने कहा ओह आने क्लास नहीं है. क्या स्कूल की क्लास बंक हो गई है, सो गया पढ़ के. Literally what my siblings, not siblings but cousins told me कि वो सो जाते हैं क्लास चल रही होती है. तो अनुपम नहीं क्लास की वजह से नहीं, मैं मतलब फिजिकली टायर्डनेस की वजह से हुआ कि जैसी बॉडी को बेड मिला ना तो वो भड़ाम वैसे हो गई. कल 2-3 दिन से चल रही है नॉन स्टॉप. और मैंने एक गलती कर दी, बस गलती इन द सेंस कि मैंने रोज टेनिस खेला है और वो भी 4 घंटे की स्लीप के बाद. तो काफी सही है अभी, काफी कूल है. काफी अच्छा. इसमें ये फनी था करने में भी टाइम लगा. इसमें ये फनी था कि एक आइटम के लिए आप दे सकते हो, स्पेशली बस उसी के लिए चलेगा. दैट वाज नाइस. तो अगेन हम भी दे सकते हैं टेक्निकली, हितांशु अपन भी आइटम डेकोरेशन के थ्रू दे सकते हैं, पर उसमें भी अपने को इंडेक्स देना पड़ता है. तो ये सॉर्ट ऑफ उसी को और सिंपलिस्टिक वे है. हितांशु वो बस एक ही चीज थी, वो शायद नोट्स में भी लिख लेना वो, कि वो तीसरा वाला मॉडल स्टार्ट हो गया था, वो पता नहीं चला था. तो जो एब्सोल्यूट और जो टॉप बॉटम वाले थे वो तीसरा वाला स्टाइल था. कि आप में बात करने लग रहे हो, आप सिबलिंग्स क्या कह रहे हैं फर्क नहीं पड़ता. मॉडल बेसिकली वाज द थर्ड वन. तो अगेन इट्स अगेन द वे यू थिंक ऑफ इट. मतलब
अगर मेरे को कोई बताता नहीं, सिर्फ बॉक्स मॉडल होता, अगर कोई सिर्फ ये बोलता तब भी आई वुड बी एबल टू कोड, बट मैं मेंटली कैलकुलेट कर रहा होता एंड वो जो हितांशु ने बोला स्क्रीन साइज अलग होते तो तुम्हारा गलत हो जाता, मैं उन ट्रैप्स में फंसता। बट देन कोई बताता सिबलिंग्स के बीच में स्पेसिंग हो जाती है तो सेकंड मॉडल यूज करने लगते। फिर कोई बताता अरे नहीं एडवांस यूज केस है एज सौरभ एंड हितांशु गिविंग एग्जांपल फॉर, वो थर्ड आता है जो ओवरराइड करता है विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट और सिबलिंग्स को नहीं। तो rightly said in the video, he said mentally people think when we actually give a drawing exercise, लोग अलग तरीके से सोचते हैं। कुछ लोग सिबलिंग्स के रिस्पेक्ट में सोचते हैं, कुछ लोग पेरेंट के रिस्पेक्ट में सोचते हैं, कुछ लोग इंडिविजुअल कंपोनेंट पे। तो hence multiple ways to do a lot of things, but again कोई भी एक पूरा सॉल्व नहीं कर रहा है प्रॉब्लम को, you can note that। थर्ड तो बनाई क्योंकि 1 2 कुछ नहीं कर पा रहे थे, एंड 2 इसलिए बना थे क्योंकि 1 बहुत कम्बरसम था और स्केलेबल सोल्यूशन नहीं था फॉर डिफरेंट ऐप साइजेस और स्क्रीन साइजेस। तो काफी इंटरेस्टिंग है। एंड द लास्ट एग्जांपल वाज ऑल अबाउट सेइंग कि देखो देयर आर थ्री वेज, मेरे को 5 वेज पता है बट आई विल एक्चुअली शो यू 2 to 3 वेज जिसमें आई विल डू द सेम प्रॉब्लम। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो काफी अच्छा टॉपिक था ये मेरे साथ। एंड फॉर समवन हु हैज नॉट वर्कड ऑन फ्रंट एंड काफी ऐसा था कि अरे आई एम लर्निंग अ लॉट। तो काफी अच्छा लगा था मेरे को। आई डोंट नो, मतलब इट मस्ट बी वेरी कन्वीनियंटली इजी क्योंकि तुम लोगों को कुछ एंड्रॉइड का वो समझ आ रहा होगा। बट सेम वाज हम बैकएंड रन कर रहे थे। एक्चुअली दोनों टॉपिक अच्छे थे। तो these 4 hours worth of content was pretty good according to me। मतलब हाँ ऐसा था कि कुछ सीखा है वाले फील आया था। हाँ एक्चुअली काफी यूजफुल है। जो अभी मैंने करेंटली कस्टमर ऐप में जो आप लोगों ने रिएक्ट नेटिव किया उसकी वो देखी, तो जो फर्स्ट 5 सेक्शन में हमने नेविगेशन कवर किया था वो तो होता ही है बेसिक, देन यूज स्टेट, ये फ्लेक्स वगैरह ये सब यूज हो रहे हैं। और आई डोंट थिंक इसके अलावा कुछ रिड्यूसर नहीं देखा मैंने, यूसेज आई थिंक है भी नहीं उसकी। मोस्टली इतने में ही कवर हो गया है पूरा जो आप लोगों ने रिएक्ट नेटिव का फ्लो बनाया। काफी यूजफुल है वाले। आप कह रहे हो इसके बाद जो भी हम कुछ नए इंट्रोड्यूस करेंगे। हाँ उसमें रेडक्स काफी यूज किया हुआ है। आई डोंट नो फ्यूचर में होगा नहीं। अंकित वाज आल्सो डिबेटिंग ऑन दैट कि मे बी आप आपकी रेपो में भी वो यूज रिड्यूसर यूज होने लग जाए गोइंग फॉरवर्ड। बट अभी तक जितना पड़ा है एक्चुअली यू कैन ओपन द कस्टमर ऐप रिएक्ट नेटिव रेपो और आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगा कि व्हाट इज हैपनिंग। अभी आगे चल के रिडक्स भी आएगा इस कोर्स के अंदर, तो उसमें भी थोड़ा और चीजें क्लियर होंगी। नाइस। सही है। कोई एक वैसा टॉपिक है क्या जो कि मतलब अब तक हमने 5 सेक्शंस प्लस सौरभ अनुपम ने अगर नहीं भी देखा होगा तो ये वाले सेक्शंस में क्या है पता चल गया है। तो एनी वन टॉपिक विद which either by your experience or by hearing it from someone you know कि इसमें ध्यान देना चाहिए। This maybe sounds easy or something like that, but when you actually use it you get more layers। ऐसा कोई टॉपिक है क्या जिसके लिए कोई एडवांस में बताना चाहोगे तुम? मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा जो जिसमें मुझे अभी करेंटली अंकित की सबसे ज़्यादा हेल्प नहीं पड़ रही। वो जो लास्ट टॉपिक हमने फ्लेक्स वाला कवर किया ना, when you actually start implementing the design savvy designs you will start seeing the struggle। जब एक defined deadline हो और तुम थोड़ी थोड़ी चीज़ों को ट्रैक करने में, आई थिंक हितांशु तुषार अनुभव के लिए इजी होगा बट हम लोगों के लिए काफ़ी टफ रहेगा। वो भी तब इजी होगा इनको एकदम परफेक्ट कोएलएल पता हो एंड्रॉइड एंड कि देखो ये वाला फंक्शन इज इक्वल टू दिस। अगर वहां पे थोड़ा सा नई चीज आ रही है तो शायद ट्रिकी हो सकता है। मेरे लिए तो हुक्स एकदम मतलब तो हुक्स एकदम काफ़ी नया था। मतलब ऐसी कोई चीज़ एंड्रॉयड में थी नहीं देखी है। तो वो और वो इंटरनली कैसे काम कर रहे हैं वो काफ़ी और इंटरेस्टिंग था। कैसे वो एंड्रॉइड में मेंटेन कर रहे हैं। लाइक समवन इज लिसनिंग टू दिस चेंजेस। जैसे इसमें तो हुक है, लाइक जो भी हुक कॉल उधर कुछ चेंज कर देंगे। कॉल बैक मॉडल जो जावास्क्रिप्ट एंड्रॉइड में लिसनर्स होते हैं। सो एंड्रॉइड में एक लाइव डेटा का कॉन्सेप्ट है तो लेकिन उसमें तो बेसिकली इसमें लाइव डेटा में भी यही होता है कि एक डेटा स्ट्रक्चर है उसको आप कहीं से भी चेंज कर सकते हो और एक कॉल बैक मिलता है। लेकिन इसमें ये थोड़ा एक और लेवल अप है कि इसमें आपको अब जैसे अगर कॉल बैक मिल रहा है तो हमें एंड्रॉइड में सेट करना पड़ेगा कि अब कॉल बैक मिल गया सो आई सेट माई टेक्स्ट व्यू कि अब ये टेक्स्ट से सेट हो जाए, तो मुझे खुद लिखना पड़ता है। रिएक्ट में ऐसा नहीं है। रिएक्ट में आप सीधा यूज़ करो और फिर रिएक्ट खुद ही कॉल कर देगा और खुद ही मतलब सेट हो जाएगा। तो री रेंडरिंग हमारे में नहीं होती। हाँ एंड्रॉइड में री रेंडरिंग नहीं होती, इसमें हो जाती है। तो तुम ये कह रहे थे कि अगर तुम
तुम एंड्रॉइड में लिखते थे तुम्हें count+1 भी खुद से लिखना पड़ता, count = count+1, या मैं हाँ गलत वो सिमिलर है, किंतु मैं एक फंक्शन कॉल करता कि काउंट की वैल्यू +1 हो चुकी है, मुझे कॉल बैक मिल जाता। लेकिन जैसे यहाँ पर हमने देखा था कि इन्होंने बस नॉर्मल जैसे लिखते हैं JSX में काउंट यूज़ कर दिया, लेकिन मुझे एंड्रॉइड में क्या करना पड़ता कि उस कॉल बैक में काउंट की वैल्यू मिलती और मैं दोबारा सेट टेक्स्ट करता। अच्छा, तो तुम्हें सेट अलग से लिखना पड़ता। हाँ so, और इसमें तो कॉल बैक फंक्शन ही वो सेटर फंक्शन है जनरली, जो जब हम यूज हाँ, स्टेट लिखते हाँ इसमें कॉल बैक भी नहीं है। हैं। ठीक है, got it। मनीष, आपको कुछ बनाना है ना इस पे, मतलब जो अभी तक हमने पढ़ा है, तो उसके ऊपर आप वो बना सकते हो जो हमने फ्लैट लिस्ट व्यू पढ़ा था ना। सो फ्लैट लिस्ट व्यू के अंदर आप हर जगह मतलब हर बार अलग अलग कंपोनेंट्स डालो, तो आपको मतलब डिजाइन सबके डिफरेंट रखना, तो काफी सारे कंपोनेंट्स बना सकते हो, तो उसके आपके डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स बन जाएंगे। और उसके अंदर एक में काउंटर रखना, दूसरे में दूसरा काउंटर रखना, तो आपका फिर वो स्टेट वाली चीज भी कवर हो जाएगी, तो आपके 2-3 चीजें एक साथ कवर हो जाएंगी उसके अंदर। got it। हाँ, और flat list वाला actually powerful concept है, because list of anything you can support thanks to JavaScript's general idea of list। तो उससे आपको वो क्लियर हो जाएगा कि बीपीआर के अंदर हमारी पूरी लिस्टिंग में हर कंपोनेंट अलग तरह का दिखता है ना, तो हर कंपोनेंट को हम कैसे कैसे डाल रहे हैं उसके अंदर, और वो फ्लैट लिस्ट में अलग से हर कंपोनेंट अलग कैसे दिखता है। Personally मेरे को लगता था कि the only thing I used to get confused earlier was this part, कि मेरे को हमेशा लगता था यार, अच्छा तुमने अगर सारे कंपोनेंट्स अच्छे से डिफाइन कर लिए और तुम्हें इंडिविजुअली बनाना आता है तो तुम ऊपर से नीचे बनाते जाओगे, बट हाउ डू यू गिव स्पेसेस एंड ऑल, वो मैं हमेशा सोचता था। बट थैंक्स टू दिस लास्ट पार्ट, फ्लेक्स वगैरह वाला, नॉट फ्लेक्स वगैरह वाला बट यू नो द टॉपिक लेआउट्स वाला, उससे मुझे समझ आ गया कि कैसे तुम नेसेसरीली स्पेस दे पाते हो इवन दो तुम्हें मतलब कंपोनेंट एक के बाद एक बनाना है, वो वाले इमेजिनेशन से बाहर आ पाता हूँ मैं। मतलब नाउ आई कैन लिटरली ड्रॉ द थर्ड कंपोनेंट एंड देन ड्रॉ द सेकंड एंड द फर्स्ट। तो जैसे होम स्क्रीन में एक यूज केस आया था, अनुपम हैज सम कॉन्टेक्स्ट मोस्ट लाइकली, कि रीबुक का सर्विस जब बनाया था उसका टेम्पलेट बाद में रेंडर होता था। तो अब मुझे नहीं पता कि अभी तुम उसके लिए स्पेस छोड़ के, अभी तो सपोर्टेड ही नहीं है, बट तुम उसको स्पेस छोड़ देते थे, बाद में फिल इन करते थे, या फिर कुछ और होता था, राइट? मतलब स्पेस, उसकी स्पेस ऊपर से 100 नीचे भी हो सकती है, 150 नीचे भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन ऊपर कितने टेम्पलेट्स आ रहे हैं। तो आर यू डूइंग दैट कैलकुलेशन फर्स्ट? और अगर तुम कर भी रहे हो तो, और नहीं कर रहे तो, ईदर वे नाउ आई नो द आंसर। अगर मेरे को नहीं भी करनी तब भी मैं लेआउट्स की प्रॉपर्टीज यूज करके ऊपर नीचे कर सकता हूँ कंपोनेंट्स को, राइट? आई डोंट रियली नीड टू नो कि 200 पिक्सल नीचे जाके ये बनेगा। आई कैन से कि इस कंपोनेंट के ऊपर इतना टॉप छोड़ दो, टॉप = 25, वो अपने आप स्पेस छोड़ देगा ऊपर वाले सिबलिंग के रिस्पेक्ट में। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच आई थॉट वाज यूजफुल। करेक्ट। इमेजिनेटिवली चीजें ज्यादा समझ आई है तो शायद करेंगे। मुझे मतलब एक चीज़ पूछनी थी, मतलब सब टॉपिक से अलग है, तो मुझे तो जैसे ये इन्होंने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा है, मुझे टाइपस्क्रिप्ट में अगर ये सेम चीज़ मतलब रिएक्ट नेटिव यूज़ करना है तो क्या करना पड़ेगा, और मतलब कितना आसान मुश्किल है? सौरभ सर, यार मैंने बनी बनाई रेपो यूज करी है बट ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। इवन JS to TS कन्वर्जन इज नॉट मच ऑफ अ थिंग। मतलब आप टीएस के अंदर भी जेएस का कोड तो लिख ही सकते हैं ना, वो रीड तो वो कर ही लेते हैं। राइट, हाँ तो हाँ मतलब कोई डिफरेंस ऐसा चाहेगा नहीं। ये यूज मतलब इसलिए हाँ करना है ताकि क्लैरिटी मिल जाए, राइट? वो कंपाइलिंग में जो TSC वाला हाँ पार्ट कहाँ पर आना चाहिए, जैसे कि अब मेरे जैसे जो एक्सपो क्लाइंट में बेसिकली जावास्क्रिप्ट कोड जाना चाहिए, तो वो कंपाइलेशन फेज वो वाला चीज़ कहाँ जानी चाहिए? तो TS में भी आप बेसिकली बताते हो ना कि इवन योर पैकेज जो जेसन में जो आपकी स्टार्ट कमांड होती है, टेल हिम कि कहाँ से रीड करना है। एंड जनरली TS लाइब्रेरीज में वी सेंड npm start as कि पहले कंपाइल करो एंड देन रीड फ्रॉम दिस डिस्क फोल्डर, और आपका डिस्क फोल्डर में वो JS कोड बन जाता है। तो सिमिलरली ओके द फुल ट्रू फॉर दिस लाइब्रेरी आल्सो, आप पूरा TS में रखो, देन TSC करोगे तो एक डिस्क फोल्डर बन जाएगा। तो जो JSX कोड है वो तो वैसे लिखना पड़ेगा ना, मैं खाली बाकी वाला पार्ट को TSC। हाँ हाँ राइट राइट। ठीक है, मतलब मुझे अभी ऐसा लगा था कि वो शायद इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि जो कंपोनेंट्स होते हैं वो काफी एनीवे स्ट्रक्चर्ड होते हैं। बैकएंड में तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि बिकॉज ऑफ द मल्टीपल लेयर्स हितांशु, बिकॉज API से आता है, फिर वो किसी फंक्शन में जाता है, फिर वो आगे पास होता है, बहुत रीजंस होते हैं व्हेन यू पास अ लॉट ऑफ डेटा। बट इसके अंदर स्ट्रक्चर ऑलरेडी काफी दिखता है मेरे को, लाइक तुम्हें जितना बैकएंड में काम किया दिखता होगा कि स्ट्रक्चर इतना बड़ी चीज नहीं है।
जावा वाले कोड, जावास्क्रिप्ट वाले कोड में, बट यहाँ पे ऑटोमेटिकली है क्योंकि जब तुम कंपोनेंट बना रहे हो तुम मतलब बोल रहे हो बनाना कि ही इसमें पड़ता है, मतलब फोर्स हो जाता है स्ट्रिंग बनाने के लिए। स्ट्रिंग है, अगर स्ट्रिंग की जगह तुम कुछ और दोगे तो अपने आप फट ही जाएगा वो। तो यहाँ पे मेरे को लगता है ज्यादा जल्दी दिख जाता है, ऑब्वियसली रन टाइम पे दिखता है यहाँ पे भी, बट ज्यादा विजिबल है। जावास्क्रिप्ट में कई बार इनविजिबल हो जाते हैं वो साइड इफेक्ट्स कि कुछ अनडिफाइंड लगे वो। तो मेरे को इनिशियल थॉट नहीं था ये कि मेरे को टाइपस्क्रिप्ट में इसको बनाना है, बट आई थिंक इट शुड बी रिलेटिवली इजी एज सॉल्व दिस। नेक्स्ट टॉपिक में वो येल्प शुरू करेंगे, प्रोजेक्ट हाँ शुरू ये हो गया। नेक्स्ट वाला कितने घंटे का ये बता दे हितांशु, नेक्स्ट क्योंकि ये इस बार तो हमने 3.5 घंटे 4 घंटे कवर किया था। एक मिनट। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शन 8, इट इज ऑफ 56 मिनट्स। 2 सेक्शन कवर कर लेते हैं। हाँ 2 घंटे का तो अनुपम ने इस बार तो इसलिए बोला था क्योंकि ये अगला सेक्शन पे डिपेंड था। ठीक है, हाँ तो 2 to 3 आवर्स का बनाना है। हाँ, तो और ये कंबाइंड भी है, मतलब सेक्शन 8 और सेक्शन 9। तो सेक्शन 8 है कि वो रेस्टोरेंट ऐप के बारे में, और सेक्शन 9 के बारे में यूजिंग आउटसाइड एपीआईज। तो ये मे बी कुछ मतलब वही एक्सेस के बारे में बता रहा है, तो नेटवर्क कॉल ये सब होगा। कर दो एंड सौरभ और अनुपम को शायद पढ़ना पड़ेगा ये वाला बट अगर तुम स्पीड पे देखोगे एंड तुम्हें जितनी नॉलेज है अभी काफी जल्दी होता है। मैंने सब 2x पे देखा, मैंने भी नहीं पढ़ा अभी यहाँ तक, तो मतलब लेआउट्स मैंने कुछ नहीं कर रखा, मुझे भी 3-4 घंटे का पढ़ना है। पर्सनली मेरे को लेआउट पे रिलेटिवली पे जाना पड़ा था क्योंकि देयर वर सो मेनी थिंग्स। अब मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट रहता हूं, बट अब मैं 3x भी कर सकता हूँ इतना समझने के बाद। आप 2x कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट 2 टॉपिक्स कर लेते हैं। हितांशु इस पे सेक्शन 8 और 9 हाँ मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, चलो सी यू नेक्स्ट टाइम ऑन सैटरडे दिस टाइम। बाय 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 बाय।